میری ایک چھوٹی بہن صوفیہ ہے، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے ماسکو میں، اور چھوٹا بھائی نیو یارک فلم اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما پاپا دونوں ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت کام کیا ہے، انفیکٹ پاپا نے مجھ سے بہت کام لیا ہے۔ وہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ریسٹورنٹ آؤ تو تم کسی بھی چیز کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ معلوم نہیں کر سکو گے کہ وہ کتنی پرانی ہے اور کتنی عرصے سے وہاں زیر استعمال ہے۔ یعنی تمہارے پاپا چیزوں کو سنبھالتے نہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ویسے وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اچھے انسان کا دنیا میں موجود ہونا قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں اچھا انسان ہوں؟ آلیان گھاس پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور یہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بالکل، ویرا نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو ماما کی وجہ سے۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ تم اپنی وجہ سے اچھے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مستقبل میں تمہارا ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے؟ ابھی اس کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ ڈگری کے بعد میں دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جب سے پیدا ہوئی ہوں پڑھ ہی رہی ہوں۔ اچھا، کیا میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، میں پھر بھی بتاؤں گی، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ڈپارٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آنکھیں بھینگی کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ پھر تم دونوں زبان کو ٹھوڑی سے لگانے لگے۔ آئی مسٹ سے تمہاری زبان بہت لمبی ہے۔ پھر تم دونوں نے کان کو پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا کیا اسپیشل لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں، تو اس نے ہنس کر آنکھ مار کر تمہاری طرف دیکھ کر کہا، یہ تو واقعی اسپیشل ہے۔ اچھا؟ ہاں۔ اور جب کلاس میں سب اپنا تعارف کروا رہے تھے تو مجھ سے اگلی رو میں بیٹھے تم ایک ایسے پھول کی پتیاں بنا رہے تھے جو تخیل میں تو ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہو جو سیرے سے موجود ہی نہیں ہیں، تو تم ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہو گے جو موجود ہیں۔ تم انجان رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ آلیان مسکرا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم یہ کہتے تو مجھے اچھا لگتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس نے کہہ دیا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔ ویرا مزید اسے اس کی خوبیاں بتاتی کہ کاغذ کا بنا ایک جہاز اڑتے ہوئے ان کے درمیان آ کر گرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا آلیان، پھر ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ چلی گئی۔ آلیان نے جہاز اٹھا کر پڑھا، امرہا۔ بس اس کی نظر یہیں ٹھہر گئی۔ ویرا امرہا کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں کیا روس کا حساب امریکہ سے برابر کر دیا؟ پر ابھی تو میں امریکہ گئی ہی نہیں۔ میں روز تمہیں 2-3 گھنٹے کی مشق کروا سکتی ہوں۔ صبح جلدی اٹھ جایا کرنا۔ ویرا نے اس کی پونی کھینچی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اور کس چیز کی مشق؟ سائیکل کی۔ وہ کیوں؟ کال کو چیلنج دیا ہے نا تم نے، اب کیا ریس میں ہارنا ہے؟ وہ کریم کافی پینے کی تیاری کر رہی تھی کہ پورا مگ گرا بیٹھی۔ کس نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ تم نے کال کو۔ ویرا اس کے پاس سے بیٹھ گئی۔ ویل ڈن امرہا۔ اسی دوران آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ثنا خاں اس کے پاس آئی۔ میں نے تم پر 15 پاؤنڈ شرط بھی لگا دی ہے۔ امرہا اس کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ شکر ہے کال کو کسی نے تو ٹکر دینے کا سوچا۔ کھڑے کھڑے ثنا نے اسے شانے پر تھپکی دی۔ امرہا دیوانوں کی طرح سامنے کھڑی ثنا اور قریب بیٹھی ویرا کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھ میں کاغذ سے بنے جہاز تھے، جس کے ایک پر امرہا کار سائیکل ریس اور دوسرے پر وقت، دن، جگہ لکھی تھی، اور نیچے یہ تصریح کہ امرہا نے کال کو چیلنج کیا ہے اور کال نے قبول کر لیا ہے۔
ये जहाज यूनी भर में खूब उड़ते फिर रहे थे। एक अमरा के सर पर भी आकर गिरा। दूर कार खड़ा दांत निकाल रहा था। अमरा फौरन उसके पीछे लपकी तो वो भाग गया। थोड़ी देर वो उसे इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन वो मिला नहीं। और जब वो पैर पटक पटक कर चल रही थी तो वो एकदम से उसके सामने आ गया। मुझे ढूंढ रही हो? लो, मैं हाजिर हूँ। ये क्या है? उसने जहाज उसके आगे लहराया। हमारी रेस अगले हफ्ते। अमरा और कार्ल साथ साथ। अपनी जेब से किसी और की जेब से उड़ाया गया लॉलीपॉप निकाल कर वो खाने लगा। मेरी तरफ से 1000-2000 जहाज और उड़ा दो यूनी में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, रेस जरूर होगी। अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो तमगा मिलेगा। नहीं, सैल्यूट जो मैं खुद तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गई तो। सुनो अमरा, बल्कि देखो दी क्वीन, तुम डर क्यों रही हो? चलो तुम यहाँ खड़े खड़े मान लो कि आई एम कार्ल दी ग्रेट और तुम कार्ल दी ग्रेट से डरती हो। कार्ल दी ग्रेट? कार्ल से बहस फजूल जानकर वो पलट आई। उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना फिक्र के कार्ल जूनी में क्या ऐलान करता फिर रहा है। वो क्या पागल थी जो उसके साथ रेस लगाती? चलो आओ, मैं तुम्हें मश्क करवा दूं। रात को वीरा उसे कमरे से ले जाने आई। पागल हो गई हो तुम भी? 4 दिन मुझे साइकिल चलाते नहीं हुए कि मैं रेस लगाने चल पड़ूं? नामुमकिन, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं। नामुमकिन के सोच कर बैठी हो तो इसे मुमकिन कैसे कर सकती हो भला? ये पागलपन है वीरा, कर गुजरो ये पागलपन। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी काफी जज्बाती हो रहे हैं। तुम पर शर्त लगाई है। तुम लोग अजीब हो वैसे। मुकाबले में कोई तीसरा गैर मुल्की हो तो तुम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एक हो जाते हो। एनीवे, तुम अब पीछे नहीं हटोगी। वीरा, मुझसे तो साइकिल ही नहीं चलेगी। मैदान में उतरोगी तो देखना कैसा जोश आएगा तुम में। होश आएगा तो जोश आएगा ना। साधना, लेडी मेहर को मालूम हुआ तो उन्होंने भी हाथ लहरा लहरा कर वो तकरीरें की कि मामूली सी रेस ही तो है, कौन सा ओलंपिक की दौड़ है, ये वो फलां फलां वगैरह वगैरह। एनोन भी आ गई और जापानी मकौले तर्जमे करके सुनाने लगी। साथ उसने खड़े खड़े 3-4 शुजात और बहादुरी से लबालब भरी जापानी कहानियां भी सुना दी। उसके अलावा सब पुरजोश थीं और उसमें नाक तक जोश भर देने को तैयार थीं। निश्चित कहा में रात भर 4 खवातीन उसे अपने नरगे में लिए बैठी रहीं और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका सर हाँ में नहीं हिल गया। सुबह सबसे पहले वो बिजनेस डिपार्टमेंट गई। कार्ल और आलियान खड़े बातें कर रहे थे। वो उनके करीब गई। मैं रेस के लिए तैयार हूँ, उसने एनोन की कहानी के किरदार की तरह गर्दन को बुलंद करके कहा और सिर्फ आलियान को मुस्कुरा कर देख कर आ गई। पूरी यूनी में तुम्हें अमरा ही मिली थी रेस लगाने के लिए? आलियान ने खफके से कार्ल को देखा। हाँ, जैसे पूरी दुनिया में तुम्हें एक वही मिली थी प्रपोज करने के लिए। कार्ल ने मजाक बिल्कुल नहीं किया था। वो ये बात कहते संजीदा था। वो लाइब्रेरी के अतराफ में टहल रही थी कि कब वो आता है और वो उसे आता नजर आ गया। वो जल्दी से उसके पास गई। हाय आलियान, कैसे हो? बाल कटवा कर बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा सुनो, हफ्ते को मेरी रेस है, तुम आओगे? वो खामोश चलता रहा और अच्छा लग रहा था ऐसा करते। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मशक करवा सकते हो? मैंने कार्ल से इसलिए हाँ कही क्योंकि तुमने एक बार कहा था हार जाने वाले उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर होते हैं जो मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं करते। जवाब के इंतजार में वो उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो खामोश था। दोनों हाथों को पेन की जेबों में डाले वो बेनियाज नजर आने के नए अंदाज तरतीब दे रहा था। देखो, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद हैं। एक बार फिर मुझे दाद दो। मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ कि मुझे किस नंबर का जूता आएगा, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे स्टोर में तुम्हें किस नंबर का जूता फिट आया था, किस नंबर का तुम्हें जरा सा तंग था और किस जूते को उठाकर तुमने कहा था इतना महंगा जूता
अगर मुस्तकबिल में मैं इतना महंगा जूता लेने का इरादा करूँगा तो मैं समझ जाऊँगा मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने बेकार जूतों के करामत लेसिस दूसरे जूतों में बदल बदल कर इस्तेमाल करते हो, और ये भी कि तुम्हारे पास एक बंद रिस्ट वॉच है जिसे तुम 7 दिनों में एक बार ज़रूर पहनते हो। वजह मैंने जान ली है, तुम चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं पहन देते कि वो बेकार हो चुकी हैं, तुम उनसे वाबस्ता हो जाते हो। तुम्हारे लिए उनसे अलग होना मुश्किल हो जाता है। तुम चीज़ों के साथ पे खुदगर्जी का मुजाहिरा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ रहमदिली का मुजाहिरा नहीं कर रहे, लेकिन फ़िलहाल मैं उसे नज़रअंदाज कर देती हूँ। रुककर उसने सांस लिया और उसे देखा। अभी भी वो बोलने पर माइल नहीं था। एक बार फिर मुझे सराहा जाना ज़रूरी है। मैंने तुम्हारी साइकिल की कहानी भी मालूम कर ली है। साई जैसा एक फरिश्ता सिर्फ लड़का तुम्हारा दोस्त था। तुम दोनों एक दूसरे की साइकिलों के पीछे बैठकर आया जाया करते थे। डिग्री लेने के बाद जब वो जाने लगा तो यादगार के तौर पर तुम्हें अपनी साइकिल दे गया और तुम्हारे साथ ले गया। उसने एक अच्छा ये काम किया कि वो यादगार के तौर पर तुम्हें ही उठा कर नहीं ले गया। और सुनो आलियान के मेरे डिपार्टमेंट की कुछ शरारती लड़कियों का कहना है कि तुम्हें अगवा किया जाना ज़रूरी हो गया है, और उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें किसी नाइट राइडर की खिदमत हासिल हो गई तो वो ये कर गुजरेंगी। तुम कितने लोगों को मतलूब हो आलियान। खैर, मुझे एक और बात भी मालूम हुई है कि सीनियर्स में कोई लिंडा नामी लड़की थी। वो जब तक रही बहाने बना बना कर तुमसे टकराती रही, और ये टकरें इतनी मशहूर हो गईं कि उसे लिंडा द बुल और तुम्हें आलियान द फाइटर कहा जाने लगा। उसे देखते ही तुम इधर उधर हो जाया करते थे, फिर भी वो तुम्हें ढूंढ लेती थी। मैं उसे ऐसी बचकाना हरकतें करते हुए देखती तो यकीनन उसे समझा देती कि दीबुल आखिर कहते किससे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो तुम्हारा दोस्त नहीं भी होता वो भी ये चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में ज़रूर आओ। और ये भी कि एक डरी सहमी मासूम दिल लड़की ने उस वक्त तुम्हें देखते ही थप्पड़ मार दिया था जब तुमने काल से कोई गेम हारने पर अपने सर के बाल साफ करवा लिए थे। अपना सर कटवा लेते, बाल क्यों कटवाए? उसने तुमसे ये कहा था। वैसे वो कुछ ज्यादा ही कह गई। उसे कहना चाहिए था काल का सर कटवा देते, अपने बाल क्यों कटवाए? और मुझे तुमसे एक शिकायत भी है। चंद दिन पहले मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि पिछले साल हैलोवीन पर तुम और काल किसी ऊंची इमारत पर चढ़कर हैलोवीन करतू आने जाने वालों पर लड़का रहे थे। मुझे तुमसे ये शिकवा है कि तुमने काल को ऊपर से नीचे क्यों नहीं लड़काया। अगर तुम ये कर देते तो कितना सवाब कमाते। वैसे आलियान, एक और राज की बात बताऊं, अगर मैं आलियान होती तो फौरन अमरहा से दोस्ती कर लेती, उसे ट्वीट में चॉकलेट का डब्बा देती और फिर ये ट्वीट वापस भी न लेती और हर रोज ट्वीट देती रहती और लेना भूल जाती। उसके बोलने का अंदाज काबिल दीद था। अगर मैं आलियान होती तो अमरहा को माफ़ कर देती। मैं बातों में भटक चुकी हूँ, लेकिन एक और बात सुन लो। मैं ज़िंदगी में बहुत बार नाकाम हुई हूँ। FSC में टॉप नहीं कर सकी, BA में A+ नहीं ले सकी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं ज़िंदगी में बड़ी बेचैरी सी रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मश्क में मेरा साथ दो, ताकि अगर मैं हारूं भी तो ज़रा काबिल फ़ख्र अंदाज से, लेकिन शायद तुम मुझे जितवा ही दो, है ना? बेस्ट ऑफ लक। 2 कदम से आगे चलते आलियान ने मुड़े बगैर कहा और चॉकलेट निकाल कर खाते लाइब्रेरी के अंदर चला गया। अमरहा वापस पलट आई। वो ये महसूस नहीं कर सकी थी कि आगे आगे चलते आलियान ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। रैक से किताबें निकालता आलियान भी लाइम था। उसने लाइब्रेरी में आने में इतना वक्त क्यों लिया था? वीरा के साथ जी जान लगाकर मशक करती वो एक बार भी वीरा को नहीं हरा सकी थी। वो जानती थी वो काल को तो किसी सूरत नहीं हरा पाएगी, लेकिन जाहिर है मुकाबला अहम है, ना कि सिर्फ जीत। ग्राउंड में उन दोनों को जानने वाले काफ़ी से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। सबकी ख्वाहिश थी कि काल हार जाए,
जबकि सब जानते थे कि यह नामुमकिन है। वीरा, उसकी कोच, उसके कान में घुसी हुई थी। भूल जाओ कि यहाँ कोई कार या कोई और मौजूद है। पूरी कुव्वत लगाकर साइकिल दौड़ाना, पूरी कुव्वत लगाकर, बस आज तुम्हें यही करना है। अमरा ने दुआ की, बल्कि मिन्नत के कितना मजा आए अगर वो वाकई में जीत जाए। अगर कार पर साइकिल चलाने के दौरान फालिज का हमला हो जाए तो कैसा रहे, या उसकी नज़र धुंधला जाए, बल्कि अगर वो नाबीना ही हो जाए। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा मेंढकी। कार ने साइकिल उसके बराबर में लाकर कहा। अगर मैं जीत गई तो पता नहीं क्या कर गुजरूंगी, उसने दिल में सोचा। खिलौना गन से फायर किया गया और रेस शुरू हो गई। सारी दुनिया गायब हो गई। एक ट्रक रह गया और उस पर दौड़ती अमरा खातून पाकिस्तान की साइकिल और कार वो मज़े से पैडल मार रहा था। अमरा बहुत दूर आके जा चुकी थी। कार को कोई जल्दी नहीं थी। वो सुहाने मौसम का लुत्फ लेता, सीटी बजाता बहुत आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चला रहा था। अमरा बहुत आगे जा चुकी तो उसने एकदम से रफ्तार पकड़ी और बिजली की तेजी से अमरा को पीछे छोड़कर आगे निकल गया और फिर रफ्तार आहिस्ता कर ली। अमरा पूरी जान मारते कार के पीछे से ज़रा सी आगे निकली और ज़रा सी दूर हुई कि कार ने फिर रफ्तार पकड़ी। पलक झपकते में अमरा से आगे हुआ और फिर रफ्तार आहिस्ता कर ली और सीटी बजाते साइकिल को वॉक करवाने लगा। वो उसे आम अंदाज से नहीं, शानदार अंदाज से हराना चाहता था। अमरा उसे देख रही थी, ना ही उसे उस वक्त मालूम था कि कार ये सब कर रहा है। ये सब उसे बाद में बताया गया। वो सिर्फ विनिंग लाइन को देख रही थी और फिर जब दूर से उसे विनिंग लाइन नजर आई तो वीरा के कहने के मुताबिक उसने अपनी कुव्वत को 100 से ज़रब दी, जो कि दी न गई। लेकिन जितनी भी हासिल कुव्वत मिली उसने साइकिल पर लगा दी। काल उसके पीछे सीटी बजा रहा था। उसने अब एकदम पैडल मारा और जो खरगोश और कछुए वाली कहानी में खरगोश के साथ होता है वही काल के साथ हुआ। वो तेजी से अमरा के एंड साथ आया ही था कि वो साइकिल से गिर गया। बादजा और उसका बयान था कि एक छुरा उसकी कनपटी से आकर लगा था। उसका सर घूम गया था। किसी ने उस ड्रामेबाज कार की बात का यकीन नहीं किया। सबका मानना था कि अपनी बुरी हिकमत अमली से जब उसे अपनी हार साफ दिखाई देने लगी तो उसने खुद को गिरा लिया। लेकिन अमरा वो विनिंग लाइन के उस तरफ थी। वो जीत चुकी थी। अमरा, मैं 100 बार पहाड़ पर चढ़ा और गिर गया। जब मैंने फिर चढ़ाई शुरू की तो पहाड़ को अपने सामने झुका हुआ पाया। मैदान हशर के परिंदे मैदान अमल में गिरा नहीं करते और मुकाबला देखने वाले कभी ये नहीं जान सकते कि जीत जाने वाले किस आसमान का सफ़र करके ज़मीन पर पलटते हैं। अमरा ने जीत कर स्टूडेंट्स में उस शख्स को ढूंढ कर देखना चाहा जिसके कॉल पर उसने उस रेस में हिस्सा लिया था और जीत भी गई थी। उस शख्स की बातें उसे दुआ की तरह लगती थीं। वो खुद भी एक दुआ ही था। आलियान। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।